Hello friends, how are you all? I am Saroj Singh again in front of you. Thank you so much for your response in my previous videos. पिछले वीडियोस में कई कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि मैं आपको बताऊं कि डेमो कैसे दिया जाए केवीएस में, तो वो ये वीडियो आज उसी पर्पज़ से है कि आप किस तरीके से अपना डेमो दे सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको एक प्रॉपर टॉपिक पूरी तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं, क्या अप्रोच आपको यूज़ करनी चाहिए। और यही अप्रोच बेसिकली है तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश और मेरा जो टॉपिक रहेगा वो भी इंग्लिश में रहेगा, बट जो अप्रोच है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको सेम ही अप्लाई होती है ज़्यादातर टीचिंग में। ओके, तो हम शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है इससे और भी वीडियोज़ आगे बनाने की। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, हाउ यू विल प्रेजेंट अ डेमो इन द क्लास। When you will face the interview panel, आपको वहाँ पे 4-5 मेंबर्स मिलेंगे और वो आपको जब इंटरव्यू डेमो देने के लिए बोलेंगे तो आपको एज्यूम करना है कि वो पैनल मेंबर्स ही आपके स्टूडेंट्स हैं। ओके, वो एक तरीके से स्टूडेंट्स की तरह ही बैठे हुए हैं, आपको उन्हें स्टूडेंट्स ही कंसीडर करना है। तो आप क्लास में जाते ही जिस तरह से हम गुड मॉर्निंग करते हैं सेम वे जब आप बोर्ड के सामने वहाँ चले जाएंगे तो आप सबसे पहले विश करेंगे स्टूडेंट्स को, लाइक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इसके बाद आप बेसिकली अपने टॉपिक को रिलेट करेंगे टू द जनरल कंसेप्ट्स। ओके, आप सब डायरेक्टली अपना टॉपिक मेंशन ना करें बोर्ड पे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, आप उसको रिलेट करें एक जनरल कंसेप्ट हमारी डेली लाइफ से, लाइक जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई एम डूइंग। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर क्लास। सो टेल मी, डू यू ऑब्जर्व योर मदर ऑल एवरी डे, what she do for you, what she does at home? Have you ever observed that what she did? She was always cooking food, something, always worrying for you. Her whole life is surrounded around you. She doesn't get any time for herself, right? That's what we always observe. Our mother always giving all the time to us only, to our house, to her household, not doing anything for her hobbies, for her personal life, right? So today our topic will be our topic will also be the same, that is Aunt Jennifer's tiger. Aunt Jennifer's house. Okay, so today our topic will be Aunt Jennifer's tigers. In this we will also see the life of a female, of a housewife, that what she faced in her real life. Okay, so before telling this I would like to tell you about the author, that is Adrienne Rich. This is written by whom? By Adrienne Rich. Adrienne Rich is an American poet. Okay? Adrienne Rich is an American poet and she used to write mainly about female issues and about lesbian issues. Okay, her main writings were about females and lesbian issues. So in this poem also the poet is also discussing about the life of a female, of what things she has to face in her life. There the poet meets Aunt Jennifer. She is telling us about Aunt Jennifer. Okay, she is someone related to her. So she tells that this Aunt Jennifer, she was sitting there and she was knitting something. She was making a painting, kind of doing embroidery on a piece of cloth. That piece of cloth can be used for a table or for dining area, anywhere. And on that piece she was embroidering? She was embroidering some tigers. They were leaping, they were ferocious, and just behind the base it was a forest, green color. So the forest is green color and the tiger's yellow color was quite in contrast to that, so it appears quite good. This painting is related, this embroidered work is related to her life also. While knitting this, she was very nervous. Maybe she was really scared actually, and looking here and there again. Why she was nervous? Because she was scared of her husband. Maybe something in her past happened which makes her scared of her husband. So now friends, now observe this thing. अब मैंने इतना पढ़ा है तो जरूरी नहीं कि जो वहाँ पर पैनल आपके पास सामने बैठा रहेगा वो मेरी पूरा लेक्चर अटेंड करे। ऐसा नहीं कि मैं घर से 10 मिनट का प्रिपेयर करके तो मुझे 10 मिनट्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैनल जो है वो आपको बीच में रोक सकता है और वो क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है। लाइक मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया था और बीच में उन्होंने रोककर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे। लाइक दे आस्क्ड मी दैट टेल अस व्हाट इज द सिंबलिज्म यूज्ड हियर। सो हाउ आई डील विद दिस? First I described that point, what they were asking me. So they asked me about the symbolism, so I described that. I told them that symbolism is basically a part of speech, a poetic device, and it is used to symbolize some idea through indirect things. Okay, in this one also we have symbolism. How we have symbolism? Let's say symbolism
tigers. Okay, these tigers are symbolism. They symbolize what? They symbolize Aunt Jennifer's wish for freedom. She wants to be free like the tiger. She wants to live her life freely like the tigers. Second symbolism is her ring. Her ring is basically a jewelry piece, but what this signify? What should it symbolize? Her bounded life. Her bounded life by her marriage. The freedom that is controlled by her husband, that this ring symbolizes. So स्टूडेंट्स, इस तरीके से वो आपसे बीच में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. आप उस क्वेश्चन को पहले जो आपसे पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह. बेसिकली हमें एज्यूम करना है कि हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और कैसे हम उसको उनको पढ़ाएंगे. कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू जितना हो सके इंग्लिश में आप दें, बिकॉज केडीएस इंग्लिश को अच्छे से काफ़ी प्रेफर करता है. हाँ, अगर आपको इंग्लिश में अनकम्फर्टेबिलिटी है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट के नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के और इंग्लिश में इतने कन्वीनियंट नहीं है, तो प्रिटेंड ना करें. अगर कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दे, बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा. नहीं है तो आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको ही बहुत बेहतरीन तरीके से करें. आई होप कि जो मैंने जिस वे में ये पढ़ाया है, मैंने पूरा आपको टॉपिक नहीं समझाया, मैंने सिर्फ आपको तरीके बताए कि किस तरीके से आप सबसे पहले अपने टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, उसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसने उस टॉपिक के बारे में लिखा है या कुछ भी उसके बारे में भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो थोड़ा कनेक्ट कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए कि वो उसने ऐसा किस वजह से लिखा होगा. और सिम्बोलिज्म जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैंने वो एग्जाम्पल्स दिए. ठीक है, और हो सकता है वो पैनल फिर आपको बीच में रोके और फिर वो आपका इंटरव्यू फर्दर कंटिन्यू करे. बट जो आपका डेमो इंग्लिश में, अगर आपका सब्जेक्ट है और इंग्लिश में ही डेमो है, तो कोशिश करें कि पूरा डेमो आपका इंग्लिश में ही आप दें. दैट वुड बी गुड. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक माई वीडियो. और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर, एंड हो सके तो शेयर भी करें. सो इट विल बी रियली मोटिवेटिंग फॉर मी.